قومی نشریاتی ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن 57 برس کا ہو گیا۔ ہر دور میں قوم کی ترجمانی اور رہنمائی کی۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صبح پاکستان میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد اور ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور، ایگزیکٹو پروڈیوسر آن ابصاہی بھی موجود تھے۔ ہماری بچپن کی یادیں پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی سالگرہ کی تقریب میں گفتگو۔ پی ٹی وی نے پاکستان کی نظریاتی اساس کی حفاظت کی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا اظہار خیال۔ پی ٹی وی کا سنہرا دور واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی کی چیئرپرسن اور سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کی یقین دہانی۔ دور جدید تقاضوں کے مطابق پی ٹی وی کے پروگرامز کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کا عزم۔ ترجیحی تجارتی معاہدے کے ذریعے دو طرفہ معاشی تعلقات کا فروغ ضروری ہے۔ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں بھرپور صلاحیت سے مستفید ہونا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام سے خطے کے ملکوں کے درمیان رابطے مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی ٹیلیفونک بات چیت۔ دنیا میں ہتھیاروں کے بجائے بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ جس کا بیانیہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا اسلام آباد میں اے پی پی کی ڈیجیٹلائزیشن منصوبے کے تحت بھرتی ہونے والے کانٹریکٹ ملازمین کی تعارفی تقریب سے خطاب۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ڈالر کی قدر میں جب کمی آئے گی تو سٹے بازوں کو دھچکا لگے گا۔ منی بجٹ میں ٹیکسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس افریقی ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ کانفرنس سے پاکستانی برآمد کنندگان کو افریقی مارکیٹ تک رسائی میں مدد ملے گی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا 57 سالہ سفر۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ عوام تک مصدقہ اطلاعات کی ترسیل کا ذریعہ، جنوب ایشیا کا پہلا چینل، نسل در نسل ہماری روایات کا عکاس، قومی تشخص کا آئینہ دار، ہماری نظریاتی سرحدوں کا محافظ، فنون لطیفہ میں رجحان ساز، قومی امنگوں کی ترجمانی سے خبر و تجزیے، حالات حاضرہ، درس و تدریس و آگہی کے پیغامات، طنز و مزاح، کھیل و ثقافت، مظلوم و محکوم طبقات کی آواز، موسیقی و ادب، ڈرامہ و دستاویزی فلم، قومی سیاست و انتخابات پر نظر، خصوصی نشریات و اہم شخصیات کے انٹرویوز، شعبہ صحافت کے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والا ادارہ جو عظمت رفتہ و شان دوراں کا شاہد بنا، پہچان دی صحافت و تجزیے کو،
कुदरती आफात हों या कौमी इत्तेहाद और सरबुलंदी के दिन, पीटीवी न्यूज रहा ब्लैक एंड व्हाइट से एचडी नशरियात के सफर तक। सनसनी से पाक बरवक्त तो मुसद्दका खबर की फराहमी के लिए अपने तमाम चैनल्स के साथ आपकी खिदमत में पेश और जज्बात अंगेजी से दूर, एक मुतवाज़िन बयानी, एक मुदब्बिर अंदाज, कल भी और आज भी। पाकिस्तान टेलीविजन के 57 साल कौमी तर्जुमानी का ये सफर अभी जारी है। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ किया लाहौर से। इस लिहाज से एक तारीख़ है और आज इस तारीख़ को 57 साल हो गए, 57 years, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग हिस्ट्री। एक कारवां था जो 1964 में चला, फिर कराची, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फिर पेशावर, कोयटा, यूं 5 स्टेशन से ये कारवां आगे बढ़ता रहा। 1978 में मैंने इस कारवां को ज्वाइन किया। आज मुझे भी 40 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया, अपने काम से और अपने कंटेंट से। और फिर इसमें मल्टीपल था, ये एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान के मुआशरे को, इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पाँच दहाइयों से जायद का सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न 57 बरस का हो गया। पीटीवी ने अपने खूबसूरत सफ़र का आगाज़ 26 नवंबर 1964 को लाहौर से किया। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी और पहली अनाउंसमेंट तारिक अजीज़ ने की। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले कैमरामैन अनीस अहमद हैं, जबकि पहला गाना तुफैल नयाजी ने गाया। इस गाने की मौसीकी म्यूज़िक अमीर हैदरी ने तरतीब दी थी। 5 दहाइयों से जायद के सफ़र में पीटीवी ने जहां हर उम्र के लोगों को बेहतरीन तफरीह मुहैया की, वहीं पर उसने कौमी तामीर में अपना भरपूर किरदार अदा किया। कौमी चैनल ने नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन रूशनास कराए। पाकिस्तान टेलीविज़न ने जदीद दौर में अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुकाबले की इस दौड़ में न सिर्फ अपनी शनाख्त कायम रखी, बल्कि अपने प्रोग्रामों के जरिए आवाम के दिलों में घर करता चला गया और हर दौर में कौम की तर्जुमानी और रहनुमाई की। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे कमलैन के दी वल भजा हूं। कितने न जोड़ी मेरे जिंदियां तोड़ी, आप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के। कौमी चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न ने निस्फ सदी से जायद का सफ़र मुकम्मल कर लिया। पीटीवी की 57वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने केक काटा।
इस मौके पर मुकर्रिरीन ने PTV के साथ वाबस्ता अपनी यादें शेयर की। 5 दिहाइयों से जायद का सफर पाकिस्तान टेलीविजन 52 बरस का हो गया। PTV ने नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिर मुतारिफ करवाए और हर दौर में कौम की तर्जुमानी और रहनुमाई की। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में PTV की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने केक काटा और इस मौके पर उनका कहना था कि PTV के साथ उनकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। जंगलूस, तन्हाइयाँ, 50-50, अलफनून, ये सारे ड्रामा से जब और फिर 5 बजे आपको वहाँ पे ना एक कार्टून आते थे 5 बजे, तो पूरा एक्चुअली मेरा तो जो गांव था ना उसमें उस वक्त तो बहुत टीवी थे नहीं, तो जो हमारे घर में टीवी था तो हमारे पूरा लिटरली ऐसे ही होता था कि जैसे सिनेमा लगा हुआ, पूरा गांव आते थे और वो ड्रामा जो है, ये कार्टून जो है वो देखते थे और ये सारे, तो टीवी के साथ तो हर एक की मेमोरी यादें जुड़ी। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTV को नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्रोग्राम बनाने होंगे। तो स्टेट टीवी का काम भी हकीकत में यही है कि आप जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप उजागर करें और लोगों के दरमियान लेके जाएं। लोगों के अंदर एक होप फैक्टर जो है वो हमेशा अलाइव रहना चाहिए, और ये भी एक होता है कि आपकी आबादी की 60% यूथ है, नौजवान है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिनके अभी बड़े बड़े ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को वो पूरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की चेयरपर्सन और सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद ने प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTV के सुनहरे माजी को वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी यादें हमारी बचपन की ऐसी हैं जिसमें हम बहुत रिकॉल भी कर सकते हैं। मुझे याद है वारिस जब ड्रामा लगता था तो सड़क पर से गाड़ियाँ नजर आनी बंद हो जाती, फॉर दैट 1 आवर ट्रैफिक रुक जाती थी, सारे काम पोस्टपोन हो जाते थे। सो इसी ऊंचाई पे हम कोशिश कर रहे हैं वापस जाने। MD PTV आमिर मंजूर ने कहा कि PTV को HD टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारी जितनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, चैनल्स को HD कर रहे हैं। जैसे हमने इससे साथ फरमाया, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी फोकस है, क्योंकि जो नई फ्यूचर के बच्चे हैं वो इंटरनेट के ऊपर और मोबाइल फ़ोन पे चीज़ें देखना चाहते हैं। तो वी वांट टू बी इन द रेस के हम जिस पिछले 20 साल पहले HD की रेस से पीछे रह गए थे, इस रेस में हम पीछे रह जाते। पाकिस्तान टेलीविजन के शोबा ह्यूमन रिसोर्स के सरबराह ताहिर मुश्ताक ने कहा कि PTV मुलाजमीन के इस्तातिकार में इजाफे के लिए ह्यूमन रिसोर्स का शोबा काम कर रहा है। PTV न्यूज और करंट अफेयर के डायरेक्टर आरिफ महमूद और PTV के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन साही ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मालूमात के दौर में PTV को बैनुल-अक़वामी चैनलों की दौड़ में शामिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह की तकरीब के हवाले से PTV एकेडमी में भी केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें PTV एकेडमी, PTV स्पोर्ट्स, होम, ग्लोबल और PTV टेली स्कूल के कारकुनों ने शिरकत की। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। 7 अगस्त 2021 को नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का इश्रा कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान टेलीविजन समेत वजारत इत्तलात और नशरियात के इदारों को असर हासिल के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिजिटलाइज किया गया। इस मौके पर एक पुरवक्कार तकरीब में बटन दबाकर PTV को डिजिटलाइज किया गया था। उस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मीडिया में जिद्दत से कौमी बयानिया मजबूत होगा। इतना सुनहरा दौर जो ड्रामे प्रोड्यूस होते थे, जो प्रोडक्शंस होते थे, वो दुनिया में देखे जाते थे, बेइंतहा पॉपुलर होते थे और पड़ोसी मुल्क के अंदर भी। पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोडक्शंस का कोई सानी नहीं था। जो व्यूअरशिप पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों की थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और इतने बड़े बड़े फनकार पाकिस्तान टेलीविज़न ने पैदा किए। मोइन अख्तर, इससे बड़ा कॉमेडियन मैंने दुनिया में नहीं देखा। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी उमंगों का तर्जुमान है।
1964 के बाद अब जो 2021 में ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है मीडिया की पाकिस्तान में, जो आज इंशाल्लाह आपके हाथों से होने जा रही है। इंशाल्लाह आज जब आप यहाँ पे जब आप इंशाल्लाह इनॉग्रेट करेंगे पीटीवी का और बाकी इदारों की डिजिटलाइजेशन, तो वापस घर जाके जब आप पीटीवी खोलेंगे तो पीटीवी इंशाल्लाह एचडी हो चुका होगा। और नाज़रीन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में जितने चैनल्स चल रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान टेलीविज़न की हैसियत एक मिसाली इदारे की है, और बेशतर प्रोड्यूसर और इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स और जो बल्कि अब मैं तो ये कहूँगा कि जो अदाकार और सदाकार और यानी फनकार टीवी ने मुतारिफ कराए थे, वही फिर बाद में दूसरे चैनल्स में भी गए, और एक तरह से पीटीवी जो था वो एक ट्रेनिंग एकेडमी के तौर पर सामने आया। आज जो आप ये तरक्की याफ्ता शक्ल देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुई है, ये एक पूरी पेशेवराना तौर पर बहुत ही कमिटेड लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैं इस मौके पर अपने प्रोग्रामर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने कैमरामैन को, अपने डिज़ाइनर्स को और अपने दूसरे साथियों को जो टीवी से वाबस्ता हैं और जो टेलीविज़न की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं कि वो आइंदा भी कामयाबी और कामरानी का ये सफ़र जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह के मौके पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात की कारकर्दगी का जायज़ा भी ले रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 अगस्त 2021 से वज़ारत के तमाम ज़ैली इदारे डिजिटलाइज हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क था जिसे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया गया। इन डिपार्टमेंट्स में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी शामिल हैं। और सदफ, हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं इदारों के कुछ जो सरबराहान हमारे साथ मौजूद हों, उनके साथ बात करें और ये जानने की कोशिश करें और अपने नाज़रीन को बता सकें कि इन इदारों के डिजिटलाइज होने से कितना फ़र्क पड़ेगा। इसी पर सबसे पहले बात करते हैं, आसिम खिची साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के। आसिम खिची साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात के तमाम ज़ैली इदारे जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है इस तमाम सूरत हाल में, पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक। जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के बाद आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ेगा रेडियो के डिजिटल होने से? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। दूसरा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो डिजिटाइज होने के बाद जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जी रेवोल्यूशन आई है हमारी तमाम जो नशरियात हैं। इससे पहले हमारे पास जो नशरियात थी वो ट्रांसमिट तो हो जाती थी, लेकिन उनका जो आर्काइवल हमारे पास मौजूद नहीं होता था। तो अब डिजिटाइजेशन से ये हुआ है कि हमारी तमाम जो नशरियात हैं वो हमारे पास आर्काइव्ड होती हैं, उनको बाद में भी यूज़ किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो भी होती है, तमाम जितनी हमारी नशरियात हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हमने जनाब पिछला जितना हमारा आर्काइव था, हमारे पास पुराना डाटा था 1947 से लेकर अब तक का, वो हमने डिजिटाइज किया है और आर्काइव किया है। और वो तमाम पहले जो था वो स्पूल्स की सूरत में था, अब वो डिजिटाइज हो चुका है और वो अब जो है वो एक तरह से सेफ और हमारे पास है, और उससे हम जितने भी हमारे यानी कि पब्लिक है वो उससे फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा हमने एक अभी जो है वो सेंट्रलाइज ट्रांसमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उससे हमारे जैसे कि दूर दराज के स्टेशन से जैसे मिट्टी है या खुशदार वगैरह हैं, वो भी अब हमारे जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर आ गए हैं, और वो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हमें पूरा मुल्क जो है या जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है वो उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसी तरह और भी कुछ हमने हमारे जो हैं जो एकदम आते, अभी हमारा एक प्रोग्राम है
डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल माइग्रेशन का, जिसमें जो है तमाम हमारे जितने डिजिटल एनालॉग ट्रांसमीटर्स हैं उनको हम डिजिटल करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि हमारी एक तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, दूसरा उससे हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इवन कि हम अपना क्रॉस द बॉर्डर हमारे सेंट्रल एशिया तक और श्रीलंका तक हमारी ट्रांसमिशन जा सकेंगी। इसी तरह हमारा जो न्यूज़ रूम इस वक्त है वो टोटल ऑटोमेटेड है और वहाँ पे इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे जो अखराजात हैं वो भी बहुत कम हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कमी आई है और ओवरऑल ट्रांसमिशन की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हुई है। सही, ज़बरदस्त। आसिम साहब, तरक्की की जानिब यकीनन ये एक अहम कदम है। मुस्तकबिल करीब में आप कहाँ देखते हैं इदारे को? जी इंशाल्लाह ये जो हमारा एक तो हमने अभी जो है रिसेंटली पॉडकास्ट शुरू किया है, तो पॉडकास्ट भी जो हमारा है वो हमारी अपनी एक ऐप है, उसके ऊपर भी अवेलेबल है और वो हम अपने जो उसके ऊपर डिफरेंट हमारी कैटेगरीज हैं अराउंड 15, उनके ऊपर हम जो है वो मुख्तलिफ जो है हमारे प्रोग्राम्स वो उसके ऊपर होते हैं और वो तमाम लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, वो टोटल डिजिटाइज्ड है। इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह हम जो इस वक्त हमारे जो प्रपोज्ड जो चल रहे हैं प्रोग्राम्स और जो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ और डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही हम जो भी दुनिया के इस वक्त जितने भी ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं इंशाल्लाह हम उनके मुकाबले में होंगे और हमारी ट्रांसमिशन किसी भी दूसरे जो ममालिक के रेडियोज हैं या जो उनके ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं उनके मुकाबले में इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिम खिची साहब, डीजी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के एमडी मुबश्शिर हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुबश्शिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन एपीपी का एक बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर पर पब्लिकेशंस के हवाले से अगर हम बात करें, जितनी भी सरकारी तौर पर ख़बरें रिलीज़ की जाती हैं उनकी बात करें, एपीपी के डिजिटल होने का बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से तेज़ी से तरक्की कर रही थी, एपीपी उस लिहाज से तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने अपना ये विजन, ये वादा पूरा किया, एपीपी को भी डिजिटल किया गया। कितना फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में आलमी सतह पर मीट करने के लिए इस तमाम सूरत हाल से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकारी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इनकी वर्किंग में जिद्दत लाना हमेशा से एक बड़ा ही मसला रहा है और हमारा मजमूई मिजाज है कि हम सरकारी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वर्किंग को संजीदा नहीं लेते। 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरकारी इदारों में जिद्दत और डिजिटलाइजेशन बारे में जब अपना विजन पेश किया, जिसको कबूल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपनी वजारत और इसके ज़ेली महकमों में इसके लिए अमली इक़दामात का आगाज़ किया। हम सब जानते हैं कि दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने में आई, मगर बदकिस्मती से हमारा सरकारी मीडिया अभी तक पुराने और रिवायती स्टाइल और पुराने इक्विपमेंट के साथ ही चल रहा था, जिसकी वजह से हम दुनिया में कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन के दौर में बहुत पीछे रह गए थे। लिहाजा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने वजारत इत्तलात में जिद्दत और डिजिटलाइजेशन की जिम्मेदारी जब हमें सौंपी, तो हमने सबसे पहले सरकारी मीडिया को डिजिटलाइज करने के सफ़र का आगाज़ किया और इस साल अगस्त में एपीपी को डिजिटल मीडिया न्यूज़ एजेंसी मुंतकिल करने के अमल का अमली तौर पर आगाज़ किया गया। यहाँ मैं ये कहना भी मुनासिब समझूंगा कि ये एक नहायत ही खुशआइंद बात है कि 3-4 माह के करीब अरसे में इसके तमाम तर ज़रूरी तकाजे पूरे करते हुए एपीपी ने कौमी अखबारात में इश्तिहार देकर डिजिटलाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए भर्ती के अमल का आगाज़ किया और पहली मरतबा तहरीरी इम्तिहान के लिए थर्ड पार्टी के इंतखाब किया गया और नर्स यूनिवर्सिटी ने तहरीरी इम्तिहान देकर उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुनक्किद हुए और इस सारे अमल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जो कि इस अमल में शफाफियत का सबसे बड़ा सबूत है। सही। मुबश्शिर साहब, ये भी बताते चलिएगा कि इस किस्म के इक़दामात का क्या दूररस असर पड़ता है किसी भी इदारे की तरक्की पर? जी, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इंतहाई मुस्तनद और काबिल भरोसा मवाद तैयार करना एपीपी की जिम्मेदारियों में शामिल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया जो इस वक्त फेक न्यूज़, गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे से भरा पड़ा है, इसमें हमने मुस्बत और दुरुस्त मालूमात के साथ आगे आना है और डिजिटलाइजेशन के अमल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मवाद की तैयारी करके रियासत के बयानिया, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज, यहाँ पर मजबूत होती हुई इकॉनमी,
زراعت، صحت کے پوٹینشیل اور مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ کرنے والے مواد کی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مبشر حسن صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت اطلاعات میں تعینات خواتین اپنے شعبے میں اپنا منفرد کردار ادا کر رہی ہیں۔ قومی بیانیے کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، تاہم وزارت اطلاعات و نشریات میں موجود خواتین اس میدان میں کامیابی سے عہدہ برا ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے ٹیلی فون کیا۔ بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں بھرپور صلاحیت سے مستفید ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترجیحی تجارتی معاہدے کے ذریعے دو طرفہ معاشی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام سے خطے کے ملکوں کے درمیان رابطے مضبوط ہوں گے اور خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ازبک صدر کے دورے سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون فروغ پائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے حامل ملک میں آبادی پر کنٹرول اہم ہے۔ اسلام آباد میں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آبادی کے کنٹرول کے لیے نوبیاحتہ جوڑوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، کیونکہ آبادی کے بڑھتے تناسب سے ملکی وسائل پر بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ صحت مند خواتین ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ عورت کی صحت کے اندر ضروری ہے کہ صحت اور بچوں کی صحت دونوں چیزیں، یعنی میل نرشمنٹ، میل نیوٹریشن، ویسٹنگ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ملک کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ سٹنٹنگ کا فگر آیا، آپ نے سنا 38% سٹنٹنگ ہے، کیونکہ بچوں کو صحیح طرح سے فیڈ نہیں کیا جاتا۔ اور ہم نے بھی مغرب نہیں بدلتی دنیا سے یہ چیز پال لی کہ انفنٹ فارمولا 10,000 سال سے اپنی چھاتی کا عورت دودھ پلاتی ہے، مگر پچھلے دنوں سے 40-50 سال سے انفنٹ فارمولا ہم نے اڈاپٹ کر لیا، جبکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کرے عورت، اور اتنی اسٹرکٹلی کرے کہ پانی کا چمچہ بھی اس کو نہیں، بچے کو نہیں پلایا جائے 6 مہینے تک۔ ناظرین مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک تو پی ٹی وی کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی وی کی جو خدمات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی نیشنل کوہیشن کے لیے، پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کے لیے، اور پاکستان میں جو سول سروس اور پبلک سروس کا جتنا کام ہو رہا ہے، جتنا کام اس پہ پی ٹی وی کی کنٹریبیوشن ہے، وہ شاید کسی اور چینل کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی پاکستان کا واحد چینل ہے جو پاکستان کے اندر پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر آپٹیمزم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ میں پی ٹی وی کو بہت زیادہ 57 سالگرہ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی وی کی تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے مشکل معاملات میں، اتنے مشکل حالات میں بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی وی کو اس کی سالگرہ کے موقع پہ بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو 1964 میں جس کا قیام عمل میں آیا، 1972 سے جس نے ایک رنگین ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور جس طرح سے پی ٹی وی کے ادارے نے بہت ہی پروفیشنلزم کے ساتھ، بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ عوام کی امنگوں کی نمائندگی کی، جس طرح سے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام پیش کیے، جس طرح سے ایجوکیشنل پروگرامز پیش کیے، جس طرح ملک کے اندر سیاسی سماجی جو صورتحال ہے اس کو واضح کیا، تو بہت زیادہ اس کو قابل ذکر ہیں اور اس کو میں ایک بہت کریڈٹ دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ 57 ایئرس پی ٹی وی کو ہو گئے۔ ہم جیسے تمام آرٹسٹوں کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماں سے آپ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, लेकिन आज भी हमारे इस माशरे को एक अच्छी निगाह से देखने या इस माशरे की सही अक्कासी के लिए पीटीवी बहुत आगे आगे है। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। पीटीवी ने बहुत दानिशवर, बहुत सियासी लोग, बहुत लोगों को मौका दिया कि पीटीवी में आकर उन लोगों ने तरक्की भी की और उन्होंने अपना एक नाम भी बनाया। इन्होंने उर्दू ज़बान का हक़ अदा किया, हक़ मेज़बानी भी अदा किया। बेस्ट कंपेयर एंड देन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। वेव से मिला लेकिन फिर बहुत मिला। पाकिस्तान टेलीविजन की बात कर रहे हैं, क्या खूबसूरत ताबनाक हमारी रिवायात हैं। तारिक अजीज साहब, कमल नसीर साहब, फारूक कैसर, कैसे कैसे बड़े लोग थे मौजूद जब आपने एंट्री दी थी। न दिल पे बोझ है कोई, न गम का साया है। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ तो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ। मेरे लिए क्या एजाज़ की बात है कि मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट आमिर मकसूद साहब ने भी पढ़ा है और ज़िया साहब ने भी पढ़ा है। क्या चीज़ आपको शमोन में जो है पसंद आई थी? पहली चीज़ जो एक लड़की को अच्छी लगती है वो लड़के की लुक्स, गुड लुकिंग, हैंडसम। अच्छा, कभी आपको डर रहा हो कि कहीं फिसल ही ना जाए? फिसल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप तंग पड़ती हूँ तो कौन मनाता है? ये इन 17 सालों में मैं एक दिन भी नहीं गिनवा सकती कि शमून ने मुझे मनाया है। हाउ कम आपने एक्टिंग की तरफ नहीं शौक फरमाया? जब हम कॉम्पेयर के तौर पे आते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी लेके आते हैं। अब हमारे ड्रामों में दिखाते हैं सास है वो तो विलन है, जो नंद है वो तो फितना है। पाकिस्तान की तहजीब की शक्ल बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा था। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविज़न और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेली इदारों के डिजिटलाइजेशन के हवाले से 7 अगस्त 2021 वो तारीख साज दिन कि जब नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का इजरा किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान टेलीविज़न समेत इत्तलात व नशरियात के इदारों को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिजिटलाइज किया गया। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात की
जो कारकर्दगी है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके जो ज़ैली इदारे हैं उनकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की PBC के DG हमारे साथ रहे, APP के MD हमारे साथ रहे, और हम उनसे भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से सदफ इन इदारों के डिजिटलाइज होने के बाद जो कारकर्दगी है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान टेलीविज़न, जिस तरह इल्म में है कि पाकिस्तान टेलीविज़न भी डिजिटल हो चुका है, मुख्तलिफ इसके चैनल्स जो हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी जो कारकर्दगी है उसमें खासी बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। ये एक यकीनी तौर पर बहुत बड़ा टास्क था हुकूमत के लिए, जिसे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया गया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह के मौके पर हम वज़ारत इत्तलात और नशरियात की कारकर्दगी का जायज़ा भी ले रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 अगस्त 2021 से वज़ारत के तमाम ज़ैरी इदारे जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क था जिसे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया गया। और अगर डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो इन डिपार्टमेंट्स में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 7 अगस्त 2021 से वज़ारत के तमाम ज़ैली इदारे डिजिटलाइज हो चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के स्पोर्ट्स चैनल और पाकिस्तान टेलीविज़न के दीगर जो चैनल्स हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया गया है, ताकि ना सिर्फ असर हाजिर के जो तकाजे हैं उनसे हम आहंग हुआ जा सके, बल्कि इसके साथ साथ PTV के जो नाज़रीन हैं वो भी एक बेहतरीन और HD ट्रांसमिशन जो है हमारी वो देख सकें। और इसके लिए हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब वो इक़्तिदार में आए, और हमने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ इस वादे को पूरा किया बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की सरबराही में वजारत इत्तलात के मातहत जितने भी ज़ैली इदारे हैं उनकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से प्रोसेस जो है उसको तेज़ किया गया। और आज हम ये देख रहे हैं कि वजारत इत्तलात नशरियात के ज़ैली इदारे जो हैं उनमें से बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो कि डिजिटलाइज हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बजाय बयानिए की जंग लड़ी जा रही है, जिसका बयानिया जितना मजबूत होगा उतनी उसकी अहमियत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख से ये पता चलता है कि जहां पैसा और वसाइल थे वहां कब्जा कर लिया जाता था। इस्लामाबाद में APP को डिजिटलाइजेशन मंसूबे के तहत भर्ती होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तारुफी तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि असलहे के जोर पर लड़ी जाने वाली रवायती जंग की बात करें तो अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला करके चंद घंटों के अंदर वहां हुकूमत खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बयानिए की जंग में अमरीका को शिकस्त हुई और बिल आखिर अमरीका को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि यह बयानिए के जरिए हम अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल जो था वो अमेरिका के बमबार तैयारों के हाथ में था। अमेरिका एक्चुअली वो जंग हार गया। वो क्यों हार गया या उसको कैसे? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री चेंज हो गई है दुनिया में। डेफिनेशन ये नहीं रह गई कि आप जाएंगे वहाँ पे जाके बम मार देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप डेफिनेशन ये हो गई कि आपने एक स्टेबल सोसाइटी, स्टेबल सिस्टम्स क्रिएट करना है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पहली मरतबा मेरिट पर भर्तियाँ की जा रही हैं। हम ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहते हैं जिसमें शफाफियत नजर आए। APP को खसूसन हमने एक डिजिटल मीडिया न्यूज़ एजेंसी बनाना है, जैसे रॉयटर्स है, AFP है, और उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। जो मैंने 2018 में सोचा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल हो रहा है, जिसके लिए मैं सारी APP की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा है कि सहाफ़त के नाम पर लोगों को तोड़ फोड़, घेराव जलाओ और तशद्दुद पर उकसाने वाला नजम सेठी बेनकाब हो चुका है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि दुनिया में कहाँ सहाफ़ी तशद्दुद पर उकसाता है। बतौर सहाफ़ी नजम सेठी कैसे तशद्दुद की तरफ माइल कर रहा है। वज़ीर ममलकत ने इस्तफसार किया कि क्या माशरे की इस्लाह ऐसे होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को भी ऐसी काली भेड़ों का मुहासबा करना चाहिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न कौमी उमंगों का तर्जुमान 57 बरस का हो गया है, और इस 57 बरस के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया था 26 नवंबर
1964 को लाहौर से, जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियाद रखी। और पहली अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें सदफ, तो यकीनी तौर पर वो पहली अनाउंसमेंट हमेशा याद रखी जाएगी। तारिक अजीज साहब जो कि आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनको हमेशा याद रखा जाएगा जब भी पाकिस्तान टेलीविजन की एनिवर्सरी होगी। उन्होंने वो पहली अनाउंसमेंट की पाकिस्तान टेलीविजन की, जिसका अक्स भी इस वक्त हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो यादगार लम्हात थे 26 नवंबर 1964 के, कि जब पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने सफर का आगाज किया। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले नाज़रीन कैमरामैन की अगर बात की जाए तो उनका नाम अमीन अनीस अहमद था, जबकि पहले गुलकार की अगर हम बात करें तो तुफैल अहमद न्याजी। तुफैल न्याजी वो पहले गुलकार थे पाकिस्तान टेलीविजन के जिन्होंने गाना गाया, और इस गाने की मौसीकी म्यूजिक अमीर हैदर ने तरतीब दिया था। जी हाँ नाज़रीन, 5 दहाइयों से ज़ायद के सफ़र में PTV ने जहाँ हर उम्र के लोगों को बेहतरीन तफरीह मुहैया की है, वहीं पर इसने कौमी तामीर में भी अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है। कौमी चैनल ने नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन को रूशनास कराया है। पाकिस्तान टेलीविजन ने जदीद दौर में अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मुकाबले की इस दौर में न सिर्फ अपनी शनाख्त कायम रखी है, बल्कि अपने प्रोग्रामों की अगर बात की जाए तो PTV ने अपने प्रोग्रामों के जरिए आवाम के दिलों में अपना घर किया है। और हर दौर में इस TV चैनल ने कौम की तर्जुमानी और रहनुमाई की है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 5 दहाइयों से ज़ायद का सफ़र तय करने वाला पाकिस्तान टेलीविजन 57 बरस का हो गया है। यहाँ पे आपको मैं कतरा कलामी की माज़रत चाहूँगा। मैंने अभी एक सीन देखा जिसमें बच्चे बैठे टीवी के आगे क्लैपिंग कर रहे होते हैं। मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम PTV के सामने बैठा हुआ करते थे बचपन में, और मैना के कार्टून जो है वो लगा करते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले हम वो कार्टून देखा करते थे, और सबसे पहले तिलावत होती थी, उसके बाद दुआ मांगी जाती थी, और उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम से जो है हमने देखा कि वो पेश किए जाते थे। और आज भी वो कार्टून हमें याद है। फिर वो ऐनक वाला जिन एक ड्रामा हुआ करता था जो हमने देखा, और आज भी वो हम बचपन की बात करें तो PTV के साथ यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी की याद जुड़ी हुई है, किसी न किसी तरह वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन का जो किरदार रहा है, चाहे वो बच्चों की तरबियत के हवाले से हो, वो ड्रामों के हवाले से हो, वो प्रोग्राम्स के हवाले से हो, वो बड़ा अहम रहा है। और PTV ने हमेशा एक ऐसा रोल प्ले किया है। PTV के अगर हम ड्रामास की बात करें तो बहुत से ऐसे ड्रामे थे कि जब वो लगा करते थे तो गलियां और बाजार सुनसान हो जाया करते थे, लोग घरों में बैठकर उन ड्रामों को देखा करते थे, और आज भी वो ड्रामे जो है वो याद किए जाते हैं। बिल्कुल। और अयाज, अगर हम खबरनामे की बात करें तो रात 9 बजे का खबरनामा जो PTV पर टेलीकास्ट किया जाता था, उसकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। और जब मैंने खुद बजाते खुद अयाज जिस दिन PTV न्यूज़ पे पहली दफ़ा 9 बजे का खबरनामा पढ़ा, तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें नम हो गई। उसके बाद जो है वो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की जिसके अंदर मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर यहाँ से जो है वो खबरों के सिलसिले को जारी रखे हुए हूँ। यहाँ से नामवर लोग, वो लोग जिनका नाम लें तो मतलब लोग जो है वो सुनते हैं, रुकते हैं, वो उनको आज तक खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो लोग जिनकी आवाज़ों पर लोग थम जाया करते थे, सुना करते थे। PTV ने कौन कौन से नाम नहीं हैं जिन्हें यहाँ से पैदा किया। और नाज़रीन, इसी पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के तामीर में बड़ा किरदार अदा किया, चाहे वो न्यूज़ डिपार्टमेंट से हो, वो ड्रामा डिपार्टमेंट से हो, वो प्रोडक्शन से हो, वो करंट अफेयर से हो, उन तमाम लोगों को भी हम आज लाइनअप कर रहे हैं ताकि कुछ यादें उनकी जो है वो हम शेयर कर सकें अपने नाज़रीन के साथ। और इसी सिलसिले में साबिक कंट्रोलर न्यूज़ रहे हैं करंट अफेयर्स के, हमारे साथ सिमिल इशफाक खान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की अगर हम बात करें, 57वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। आपका सफ़र PTV के साथ कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि 57th एनिवर्सरी जब पाकिस्तान टेलीविजन मना रही है तो ये हम सब के लिए एक बड़ा खुशाइंद मौका है। हम सब के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए टेलीविजन ने एक ऐसा मार्ग किया है जो तमाम लोगों के लिए मुबारकबाद है। और इसके आप सब लोग, प्रोड्यूसर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, कैमरामैन, जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, जो भी इसमें काम करते हैं अदारे में, पाकिस्तान टेलीविजन में, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगर आप वक्त देखें, अदारे ने बहुत तरक्की की है। अब डिजिटलाइजेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान टेलीविजन ने किया। पूरी मीडिया में ये तब्दीली ले आई। HD पे शिफ्ट हो गए आप। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट।
बिल्कुल सर, असलम अजहर साहब के बारे में अगर हम आपसे पूछें, पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम, पीटीवी के बानी, उन्हें हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं, आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? यहाँ सबसे पहले तो ये है कि अगर उनको तारीफ के कोई अल्फाज हों, कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो उनकी तारीफ अदा कर सके पूरी तौर पे। उनको अगर कहा जाए कि ही वाज द बानी, पायनियर ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान, तो वो कम नहीं होगा। उन्होंने जिस तरह अनथक मेहनत से, जिस वक्त कुछ भी नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था व्हाट इज, सिर्फ रेडियो होता था और सिर्फ टेलीविजन फर्स्ट टाइम लाहौर में जब शुरू हुआ, ही वॉज द पायनियर हु ब्रॉट इन टेलीविजन इन पाकिस्तान। और खुद बजाते खुद इस तरह मेहनत करते थे ब्रॉडकास्टिंग में, डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में, कुछ भी करते थे। वो वक्त ऐसा था, हमने खुद उनके साथ काम किया, कि वो उस वक्त ऐसे लगता था कि वो एमडी नहीं है, वो चेयरमैन नहीं है, वो जीएम नहीं, वो सिर्फ एक फैमिली, टेलीविजन मैन है, बेसिकली एक टेलीविजन पर्सन है। और मिल के सारों के साथ सेट लगाना है, वो साथ आ जाते थे। एक्शन करनी है, इसको इस तरह कर ले, इसको इस तरह कर ले। मुफीद मशवरे, ऐसे मशवरे देते थे जो मतलब काबिले अमल होते थे और जिनसे नाजरीन के लिए एक का दरवाजा खुलता था। एक गहवारे थे, इल्म के गहवारा कहते हैं उन्हें। मतलब जितना भी उनके लिए कुछ कहा जाए टेलीविजन के लिए उनके हक में, वो कम है। सर, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, जिस तरह आप असलम अजहर साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो एक ऐसी शख्सियत है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि उनके साथ काम करना हर एक के लिए एक एजाज़ का बायस था। ये फरमाइए कि सर, कि जब ऐसे शख्स के नीचे आप काम कर रहे होते हैं या उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, तो आपको कितना हौसला अफजाई होती है आपकी, और आप जब वो चले जाते हैं या आपका साथ उनके साथ नहीं रहता है, तो कितनी अच्छी यादें होती हैं कि जिनके साथ आप हमेशा उनको याद रखते हैं कि मैंने उनके साथ काम किया, वो इस तरह की शख्सियत के मालिक थे। के हवाले से बात करना कितना अच्छा लगता है? इसमें कोई शक नहीं, जो कुछ आपने कहा है वो ऐसी शख्सियत थे कि पहले तो रोब और दबदबा उनका बहुत ज्यादा था, कि उनको देखते थे, उनकी प्रेजेंस होती थी तो लोग समझते थे अभी बस कुछ होने वाला है और खामोश और सहम जाते। लेकिन जब वो आप कोई बात करते थे या उनसे पूछते थे या वो आपसे बात करते थे, तो फिर एक निहायत नरम दिल, रहम दिल इंसान, बताने वाले शफीक इंसान बन जाते थे। वो आप डर, जो आप खौफ समझते थे कि इतना बड़ा आदमी, मैं वहां पे क्या पूछूं, मैं उनके सामने क्या बात करूं, वो सब खत्म हो जाता था। वो इस तरह करते थे कि जैसे आपके लेवल पे आके आपको समझाते थे, आपके लेवल पे आके आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाते थे। आपको किसी चीज की कमी का एहसास ना हो कि वो मैं किसी ऊपर लेवल से बात कर रहा हूँ और आप किसी नीचे लेवल पे, बिल्कुल इस तरह हाथ में हाथ डाल के चलाते हैं। ये उनका कमाल था, ये उनमें कूट कूट के भरा हुआ था कि कभी उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं शो किया कि मैं किसी ऊपर से बात कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल से बात कर रहा हूँ और तो छोटे से अदना से मुलाजम है पीटीवी के। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा हमारे लेवल पे आके हमें दिलासा दे के, हाथ पकड़ के और एनकरेज करते थे। जितना एनकरेज करते थे कि आप अच्छे से अच्छा काम करें, और फिर अवार्ड भी करते थे। गुस्से भी जरूर होते थे अगर आप कोताही करते थे, यू वर रिप्रिमांडेड फॉर इट, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे कि ये इसलिए आपने इसको इस तरह कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। एंड दैट वाज एक लर्निंग प्रोसेस था और उस वक्त सारे लोग लर्न करते थे एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक सरमाया थे। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि पीटीवी ने बहुत बड़े बड़े नाम भी पैदा किए, ये के बाद दीगरे एक एक कदम उठाया। 57 बरस का हो गया पीटीवी और आज डिजिटलाइजेशन का अमल भी मुकम्मल हो गया।
اور ناظرین اسلم اظہر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہیں پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن کا ان کو بانی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے اندر اپنا لوہا منوایا اور جتنی ان کے خدمات ہیں ان کو یقینی طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ستمبر 1932 کے اندر اسلم اظہر صاحب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی وہ موجود رہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے چیئرمین تھے, مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے, اور ایوب خان سابق صدر پاکستان ان کے دور میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر جو جدید جدت ہے اس کی انہوں نے بنیاد رکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ہر دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم آہنگ جو ہے وہ کیا جا سکے. ناظرین آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت اطلاعات میں تعینات خواتین اپنے شعبے میں منفرد کردار ادا کر رہی ہیں. قومی بیانیے کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے, تاہم وزارت اطلاعات و نشریات میں موجود خواتین اس میدان میں کامیابی سے عہدہ برا ہو رہی ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل اپنی اس رپورٹ میں. کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں صنف نازک برابر کی حصے دار ہوتی ہیں. تحریک انصاف ملک کی تاریخ میں واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ فیصلہ سازی میں بھی شامل کیا ہے. مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں میں خواتین کو اہم ذمہ داریاں اور اصلاحاتی عمل میں ان کی رائے کو خصوصی اہمیت دی گئی. حکومت کی اسی پالیسی کے تحت وزارت اطلاعات و نشریات میں بھی مختلف عہدوں پر خواتین اہم فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور حکومتی بیانیے کو فروغ دیتی ہوئی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد اس کی ایک مثال ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. یہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس کا بڑا ایک یونیک قسم کا کام ہے which is quite different from the other departments. لیکن میں یہاں پر بڑی پرائڈ سے یہ بتاؤں گی آپ کو کہ ہماری سروس میں جو ریشو ہے خواتین کی ایز پر آفیسرز میل آفیسرز وہ ہے 45-55 کی. تو میرٹ کو قائم رکھنا ضروری ہے اور تھوڑی سی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم ایکسیل کریں گے بلکہ ہماری جو پرسنٹیج ہے ہم شاید اس کو بھی ایکسیڈ کریں. اپنی گھریلو اور سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ سرکاری سطح پر انتظامی امور کی انجام دہی میں مصروف عمل خواتین پرعزم ہیں کہ ترقیاتی عمل میں اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گی. میں ٹرائبل ایریا سے ہوں, وہاں پہ خواتین اتنی مین سٹریم میں کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن موجودہ حکومت کا جو منشور ہے اس میں تو خواتین کو بہت زیادہ انہوں نے امپورٹنس دی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خواتین کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہے. ہر ایسا فیلڈ جس کو سمجھتے تھے کہ یہاں خاتون نہیں جا سکتی, لیکن آج ہے. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے جو ایک اچھی چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ پوزیشن آف اتھارٹی پہ آپ کو نظر آئیں گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکولی کیلیبر ان کا ہے ٹو ورک ود مین, اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں, حالانکہ ان کے چیلنجز اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں. ملک کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور آبادی کے اس بڑے حصے کو مرکزی دھارے میں لا کر ہی معاشی اور معاشرتی ترقی کا سفر تیزی سے طے کیا جا سکتا ہے. خواتین اپنے اپنے شعبوں میں ترقی کے منازل طے کرتی ہوئی یہ ثابت کر رہی ہیں کہ انہیں اگر مواقع ملیں تو وہ کامیابیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کر سکتی ہیں. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.